Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Quick recap of yesterday's session. Yesterday, we started with very important topic, that is functions. So we discussed how we can do procedure-oriented programming in JavaScript, right? So we discussed about what is function, then we saw how to define a function, how to call function. Then we discussed about formal parameters, actual argument, return statement. Getting so all that things we have discussed in yesterday's session. Now today some more things related to function. Next is we have to discuss how the correspondence between the formal and the actual is done. Actual means arguments, the values which you pass at the time of call. Whenever you're calling any function, so at that time of call, whatever values you give, they are called as actual arguments. And these values are passed to the function. So in the function, we have parameters. Parameters will receive it. They are called as formals. So wherever that function is defined, okay, foo, to that there are some parameters. Parameters are called as formals, and the actuals are arguments. So these are actual arguments and these are formal parameters. So how the correspondence is done between the actual and the formal? In JavaScript, it is strictly positional. In JavaScript, there is no concept of type checking, no data type checking. Okay, strictly positional means 1:1 argument. The first is corresponded, first actual with first formal, second actual with second formal. So in this case, the position is important. Who is at that position will get corresponded with exactly that formal. And therefore, sometimes it may happen that the values are same, but the order is changed, your result may be different. I can give you example of it. But how the correspondence between the formal and the actual is done in JavaScript? Strictly positional. 1:1. First actual, first formal. Second actual, second formal. That way the correspondence done. Okay. So in JavaScript, correspondence is purely positional. The first actual argument is mapped to the first formal, the second to the second, and so on. Getting? Okay. JavaScript doesn't do any type checking. There is no concept of data type checking and all. It is normally in TypeScript or in other strict languages. Other strict language like Java or C, there we give the data type also, no, to the parameter. Here it's not like that. Just you have to give the list of parameter. So here everything is positional mapping. First to first, second to second, third to third. JavaScript does not enforce type checking. No concept of type checking. And here the count is also not checked. Like if you have defined a function with 3 arguments, but at the time of call you are giving 4 extra, you are giving, or at the time of call you are giving less, doesn't matter what happens, I'll tell you. Okay? So you can pass any number of argument to the function regardless of how it is defined. So at the time of definition, if you have defined with 3 argument, but at the time of call you are giving 5 or you are giving 1 only, no problem. How JavaScript handles it, we will be learning one by one. Just quick about that positional, I'll explain. See, if I'm creating one more script, func2.html, okay, I'm creating one function for subtracting two values, x comma y. Okay, and what I'm doing is I'm just subtracting that x and y and returning. Now if you call this function in console.log, suppose, and I'm calling it sub 10 comma 20,
Okay, and next time what I'm doing is I'm calling the same function sub as 20 comma 10. Now what you can observe over here, both the time the function called is same, the number of values passed are same, the values are also same, only the order is changing, and as the order is changing, the positional correspondence is changing. And we have just now mentioned on the slide, in JavaScript everything is positional mapping. So here you can see 10 is corresponded with x and 20 with y, therefore it will give 10 minus 20, that is minus 10. Okay? But in the second case, you can check the values are same value which I've passed for the first call, the same value, only the order is changing. It is 20 comma 10. Instead of 10 comma 20, it is 20 comma 10, and therefore the correspondence is changed as it is positional mapping. So 20 get corresponded with x, 10 with y, and therefore you will get 20 minus 10, that is 10. So I hope you're understanding that the same function called, same parameter passed, but the arguments passed are different. The argument order is different, not argument different. Arguments are same, only their position is different, and therefore the result you get different. Getting? See. So in this example, just what you got to know is clear, that the position matters. Though the parameters are same, but the order, the position is important, because here the correspondence is positional correspondence. 10 with x, 20 with y. Here 20 with x and 10 with y, and therefore you are getting different result. Okay, now next thing is about, if suppose you're passing more, you're having more formal, but at the time of call you're giving less actuals. Meaning if the function is defined with three arguments, three formals, not argument, three formal parameters. So you have defined a function with three formal parameters, but at the time of call you are giving lesser value. That's what, no? Formals are more than the actuals. Fewer arguments are always actual, and formals are always parameter. These are parameter and these are actual. So suppose I give 10 only. So two parameters I'm not giving. JavaScript doesn't generate any error. Automatically it makes these two arguments as undefined. This will be undefined, this will be undefined. Understanding? Clear? So what you have to remember, if the number of actuals are lesser than the formal, the extra formals will get undefined value. Okay, see, if the number of formal parameter is greater than the number of actual, like example, you have a function with three formal, but you passed one only, the missing will get undefined, the extras will get undefined. As an example, I'll show you. I've created one function greet. See here, function greet with three argument, name, age, city, and I'm printing that three values, no problem. But at the time of call, I'm passing only one value, Alice. So what will happen is, it will pass Alice to name, 1:1 correspondence. So Alice will go in name, but age and city will be automatic undefined. See here, we are passing only one argument, but the function is expecting three. No problem, it will not give any error because it's not a strict type language. Like if it is JavaScript, if it is Java or C, it will generate an error. Getting? Even in Python, though Python is also loosely typed, Python gives an error that missing second positional parameter, like that, it gives error. Here it doesn't give any error. Alice will go in name, and age and city are automatic undefined. Getting? I'll show you one demonstration of it. I'll create another function, 3.html. Okay,
See, here we are creating one function greet, and we are passing name, age, and city. I'm just displaying it in console.log. Suppose first thing I'm printing name, comma name. Second, console.log age, comma age, and console.log city, comma city. Done. So I've defined a function with 3 arguments. Now suppose you're calling that function greet, okay, and you're passing value. So here I'm just passing Ram. Okay, suppose you're passing all the values, like I'm passing 45, I'm passing Pune as a city, and next time when I'm calling greet, and I'm just passing Sita. Okay, remember it is not function overloading. JavaScript doesn't support function overloading. It's a polymorphism feature which many OOP languages like C++, Java, they support. You can write more than one function with the same name. एक ही नाम के आप एक से ज्यादा फंक्शंस बना सकते हैं जिसमें पैरामीटर अलग है, बॉडी अलग है, पैरामीटर अलग है, बट नाम सेम है. ये कॉन्सेप्ट किसमें सपोर्टेड नहीं है? जावास्क्रिप्ट. इवन इन पाइथन ऑल्सो. बहुत सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पीएचपी भी नहीं सपोर्ट कर रहा है. तो इधर हमें ऐसे लगता है कि कुछ फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है कि एक फंक्शन 3 आर का, एक 1 आर का. वैसे नहीं हो रहा है. दोनों जगह पे सेम ग्रीट कॉल हो रहा है. फर्स्ट टाइम राम पास्ट, 45 पास्ट, पुणे पास्ट, प्रिंटिंग. सेकेंड टाइम सीता. तो व्हेन सीता इज पास्ट इन नेम, age and city, it is taking undefined, which I just now told you. Getting? So if you are giving lesser arguments than the actual, then the formals. So formals are more and the actuals are less. The extra formals are automatic, undefined. Okay? You can see. For the first case, we passed all the 3. So Ram 45 Pune is printed. But for the second case, you are giving only Sita and you are not passing age, and so it is undefined. Please remember, JavaScript doesn't support function overloading. Meaning, see, if you are writing one more function, greet, with only one parameter, suppose, and you are printing console.log name. So we think as if overloading is supported. 2 functions with the same name but different parameters. But it is not going to happen. It is not going to generate error also. What happens is this definition get replaced with this definition. This definition is gone now, guys. ये वाला definition चला गया और अभी ये definition रहेगा. इसलिए अभी क्या होगा? ग्रीट राम 45 पुणे भी लिखा है तो भी यही कॉल होगा. सिर्फ राम जाएगा और ये 45 पुणे इग्नोर, एंड सेकेंड केस में सीता जाएगा. ये फंक्शन कॉल ही नहीं होगा क्योंकि ये गया. ये डेफिनेशन के ऊपर ये डेफिनेशन रिप्लेस हुआ. इससे प्रूव होता है कि जावास्क्रिप्ट क्या सपोर्ट नहीं करता है. देखो, इज इट प्रिंटिंग ओनली राम एंड सीता? मीन्स इन बोथ कॉन्टेक्स्ट इट हैज कॉल्ड सेम ग्रीट. अगर अज्यूम करो फंक्शन ओवरलोडिंग सपोर्टेड है तो पहले केस के लिए ये वाला कॉल होना चाहिए था और दूसरे केस के लिए ये. बट दोनों के लिए यही कॉल हुआ. क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन इस डेफिनेशन पे रिप्लेस हुआ. इसका प्रूव है कि जावास्क्रिप्ट डजंट अलाउ फंक्शन ओवरलोडिंग. यू कैन नॉट क्रिएट मोर देन 1 फंक्शंस विद द सेम नेम. डिफरेंट सिग्नेचर, डिफरेंट बॉडी, बट द नेम इज सेम. ऐसा अलाउड नहीं है. मीन्स इस केस में हुआ क्या, ये क्लियर है? ओवरलोडिंग हुआ ही नहीं. ये न्यू डेफिनेशन इस डेफिनेशन पे रिप्लेस, इसलिए दोनों बार ये वाला डेफिनेशन कॉल हुआ, ये नहीं. ठीक है? ओके, तो ये पार्ट तो क्लियर है. ये दैट इज क्लियर. आई विल रिमूव दिस फॉर टाइम बीइंग. तो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? You have passed Ram 45 Pune. They will go, it will print. Second time Sita. The other 2 are not undefined, which I showed you now. अभी ऐसी सिचुएशन में कि instead of giving undefined,
instead of giving that value as undefined, you can assign some default value to it. ये प्रोविजन जावास्क्रिप्ट ने दिया है कि आप पैरामीटर्स को क्या दे के रख सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे एज को मैंने 25 डिफॉल्ट दे के रखा है, सिटी को मैंने डिफॉल्ट पुणे दे के रखा है। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज, whenever you don't pass any explicit value, it will take default instead of undefined. Undefined लेने की जगह पे वो अभी default लेगा। देखो पहली बार तो हमने तीनों पास किया है, राम विल गो इन नेम, 45 विल गो इन एज, पुणे विल गो इन सिटी, इट विल प्रिंट इट। बट सेकेंड टाइम सिर्फ नेम पास किया है, एज एंड सिटी नहीं दिया है, तो अभी वो अनडिफाइंड नहीं लेगा, अभी ये डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द अनडिफाइंड वैल्यू टू दैट वेरिएबल, it is good practice to assign and keep some default value. Getting? See ya. Save it here. Now I'll run it. Can you see? For the first case, has it taken these three values, Ram 45 Pune? But second case में सीता दिया था, वो गया name में, और इन दोनों को default value दिया था, तो it has taken default value 25 and Pune. Getting? So it is just an alternative for instead of making it as undefined, better give some default value. Getting? So that's what I'm telling in the next. But this default parameter concept was not there in the original JavaScript. It has been introduced in 2015 onwards JavaScript. ES6. Getting? This JavaScript. ES6 means ECMA standard JavaScript. Getting? ECMA means it's an organization, European Computer Manufacturing Association. They have created some JavaScript standards, and the browsers who are incorporating JavaScript, they have to follow that standard. Getting? So according to JavaScript 2015, which is called as ES6, they introduced this concept. So you can use default parameter to provide a backup value if an argument is missing. तो अगर कॉल करते समय अगर पैरामीटर्स एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, तो इट विल टेक डिफॉल्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग अनडिफाइंड। गेटिंग? देखो जैसे ये केस, हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ग्रीट, सेम फंक्शन, ओके, टू विच वी हैव गिवन नेम एज सिटी, नेम एज सिटी, बट एज एंड सिटी को डिफॉल्ट वैल्यू दिया है, अंदर कंसोल में वो प्रिंट कर रहा हूं मैं। करेक्ट? दिस इज अ फॉर्मेट स्ट्रिंग, यू कैन कॉल इट एज। ये स्ट्रिंग इंटरपोलेट होता है, बैकटिक वाले स्ट्रिंग है, ये याद रखना, दिस इज अ बैकटिक स्ट्रिंग। एंड बैकटिक वाले स्ट्रिंग का स्पेशलिटी क्या होता है कि बैकटिक के स्ट्रिंग में कहीं भी अगर वेरिएबल आ गया ब्रेस ब्रैकेट में प्रिसीडेड विद डॉलर, तो इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड विद इट्स वैल्यू, उसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। String is getting replaced, string is getting expanded by replacing variable with its value. ये backtick वाला है, इसलिए सिंगल कोट या डबल कोट होगा तो ये इंटरपोलेट नहीं होगा। ठीक है? Now you're calling it. See, at the time of call you are only giving Ram, you are not giving to value. तो वो undefined लेगा या default value लेगा? Default value लेगा. And therefore output comes like that. Ram is 25 and lives in Pune. Which in this example also I've done the same thing. Greet Sita, it didn't give to value, so it has taken the default. So name Sita आ जाता है, but age 25, city पुणे लेता है। ठीक है? I hope this concept is clear. Now moving to the other scenario. This part is clear कि अगर actuals कम है and formals ज्यादा है, तो extra formals को क्या मिल जाता है? Undefined. अनडिफाइंड नहीं चाहिए तो ऐसे बैकअप वैल्यू दे सकते हैं, कॉल्ड डिफॉल्ट वैल्यू, इक्वल टू। तो व्हाट विल हैपन एट द टाइम ऑफ कॉल, इफ द वैल्यूज आर मिसिंग, इट विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू। अभी दूसरे सिनारियो में जाएंगे जहां एक्चुअल्स ज्यादा भेज दिए एंड फॉर्मल्स कम है। मींस यू हैव डिफाइंड अ फंक्शन विथ 2 पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स मींस फॉर्मल, एंड कॉल करते समय मैंने ज्यादा वैल्यूज भेज दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जावास्क्रिप्ट इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। गेटिंग? तो इट डजंट गिव एनी एरर
इंस्टेड ये 10 एंड 20 चला जाएगा ए बी में और ये बाकी का इग्नोर करता है. इट विल सिंपली इग्नोर द एक्स्ट्रा वैल्यूज. गेटिंग? ओके. तो देखो, इफ द नंबर ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट is greater than the number of formal. Example, like you have defined a function with 2 formal, but at the time of call you are passing 5 actuals. पास हमेशा एक्चुअल होता है एंड फंक्शन के डेफिनेशन में जो होता है वो फॉर्मल होता है. तो फंक्शन 2 फॉर्मल का है बट कॉल करते समय 5 लिखा है. JavaScript doesn't give any error. The extra arguments are simply ignored. Getting? See here. I have defined a function with 2 argument. Add a comma b, दोनों को प्रिंट कर रहा हूं बट कॉल करते समय मैंने 4 वैल्यूज भेज दिए. कोई प्रॉब्लम नहीं. 10 विल गो इन a, 20 विल गो इन b बिकॉज इट इज 1:1 करस्पॉन्डेंस. 1:1 करस्पॉन्डेंस. तो 10 a को करस्पॉन्ड हुआ, 20 b को. ये बाकी के 2 क्या हो गए? इग्नोर. वी पास 4 बट द फंक्शन ओनली हैज 2 पोजिशनल पैरामीटर्स. तो ये 2 1:1 के हिसाब से गए, बाकी 2 इग्नोर हुए. करेक्ट? देखो 10 एंड 20 प्रिंट हुआ. करेक्ट? देखो उसका भी एग्जांपल इसी में करके दिखाता हूं. लाइक व्हाट विल डू इज फंक्शन ऐड, आई राइट a कॉमा b एंड मैं क्या करता हूं, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग में जस्ट उनका एडिशन रिटर्न करता हूं, a प्लस b. ठीक है? एंड देन in console.log I'm calling them. अब देखो add 10,20 लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पास होगा. अब console.log add 1 2 3 4. ठीक है? इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं. पहली बार 2 वैल्यू है, 10 ए में जाएगा, 20 बी में ऐड करेगा. सेकेंड केस में क्या होगा? 1 will go in A, 2 will go in B, 1 plus 2, 3 return. The next 2 are ignored. बाकी जो 2 थे वो उसने क्या किए? इग्नोर किए. You can check. See, is it giving 30? 10 plus 20, 30. Is it giving 1 plus 2, that is 3? The other are ignored. Okay? So I hope this concept is also clear to you guys. ठीक है? अभी मूव करते हैं थोड़े और कंसेप्ट्स पढ़ने के लिए. द नेक्स्ट थिंग इज यू कैन डिफाइन अ फंक्शन विच कैन टेक एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. मीनिंग इनका कहना है कि आप ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसको कॉल करते समय चाहिए उतने आर्ग्यूमेंट्स भेजो. कितने आर्ग्यूमेंट्स भेजने हैं उसका कोई लिमिट नहीं, इसलिए उसको वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कहते हैं. Means I have defined a function sum to which I am passing sometimes 10 and 20 only. तो कभी मैं sum कॉल कर रहा हूं एंड यहां मैं 1 2 3 4 5 वैल्यूज भेज रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं. सेम फंक्शन कैन रिसीव 2 आर्ग्यूमेंट ऑल्सो एंड 5 आर्ग्यूमेंट ऑल्सो. मीन्स वही फंक्शन कभी ये 2 आर्ग्यूमेंट्स भी रिसीव कर सकता है या कभी ये 5 आर्ग्यूमेंट भी. तो अगर एक ही फंक्शन कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर रिसीव कर सकता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. गेटिंग? नाउ हाउ टू डू इट? ये वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को कैसे हैंडल करना है? तो देयर आर 2 वेज. एक मॉडर्न वे भी है बाय यूजिंग रेस्ट ऑपरेटर और एक लेगेसी वे है by using one object called argument. Legacy way and एक modern way using REST operator. I'll tell you both way. तो वो जो legacy way था वो एकदम पहले JavaScript से आया है. And legacy क्यों कहना है? क्योंकि वो outdated नहीं, वो आज भी यूज होता है. If you want, you can use that style today also. Outdated जो होता है ना उसको deprecated कहते हैं. Deprecated means something which is gone in the history and we are no more using it. अब वो चीज हम यूज नहीं करते, उसको डेप्रिकेट कहते हैं. एंड लेगेसी मीन्स जो पुराना है बट आज भी यूज में है. जैसे अगर हम कहते हैं कोलगेट, तो वो कोलगेट के एड में भी होता है ना, वो लेडी बोलती है कि आई एम स्टिल कैरिंग दिस लेगेसी टू माय डॉटर विच आई गॉट फ्रॉम माय ग्रैंडमदर. तो
मेरी ग्रैंडमदर भी कोलगेट यूज करती थी, मेरी मदर भी कोलगेट, मैं भी और मेरी बच्ची भी, हम सब कोलगेट यूज करते हैं। तो भले वो 100 साल पुराना है बट आज भी यूज में है, तो उसको हम लेगेसी कहते हैं। ठीक है, ओके, एनीवेज, तो देर इज अ लेगेसी मेथड ऑल्सो एंड द मॉडर्न ES6, दैट इज 2015 ऑनवर्ड्स का जो जावास्क्रिप्ट है उसमें एक न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कॉल्ड रेस्ट ऑपरेटर। कैसे करना है वो बताता हूं, बट पहले कंसेप्ट समझ लिया। वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मीन्स पासिंग एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स टू द फंक्शन। कॉल करते समय कितने भी आर्ग्यूमेंट्स आप भेज सकते हो। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे यू आर डिफाइनिंग अ फंक्शन सम, बट एट द टाइम ऑफ कॉल यू आर पासिंग समटाइम्स 2, समटाइम्स 10, समटाइम 100। मीन्स कभी 2 आर्ग्यूमेंट भेजो, कभी 10 आर्ग्यूमेंट भेजो, कभी 100 आर्ग्यूमेंट, डजंट मैटर। Getting? So there are two approaches to pass this variable number of argument. एक होता है रेस्ट ऑपरेटर, डॉट 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 लिखना रहता है, जो थोड़ा बहुत जिनका जावा बैकग्राउंड है उनको पता रहेगा। एक है रेस्ट ऑपरेटर, ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इन ES6 एंड ऑनवर्ड्स। इट्स अ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर, एंड जो ओल्डर है बट आज भी यूज होता है, दैट इज आर्ग्यूमेंट्स। ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये ऑब्जेक्ट हर फंक्शन के अंदर यूज करने के लिए अलाउ है। जैसे ये ऑब्जेक्ट आप फंक्शन के अंदर डायरेक्ट यूज कर सकते हो, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारे वैल्यूज स्टोर्ड है। हाउ इट इज, फिर उसको कैसे एक्सेस करना है, सब बताता हूं। ठीक है, वो लगता है लाइक अ अरे बट वो ऑब्जेक्ट है। गेटिंग? तो दैट लेगेसी वे इज आल्सो देयर इन द मॉडर्न वे। बोथ अप्रोच वी विल लर्न। फर्स्ट अप्रोच विल डिस्कस, दैट इज यूजिंग रेस्ट। ओके, तो यहां क्या करना है, जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, वट एवर फंक्शन यू डिफाइन, ओके, देयर वट एवर आर्ग्यूमेंट यू आर पासिंग, जो भी आर्ग्यूमेंट आप भेजने वाले हो, आर्ग्यूमेंट का नाम कुछ भी है, मैंने आर्क्स लिखा है, उसके पहले जस्ट 3 डॉट डालने के, इसको रेस्ट ऑपरेटर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ रेस्ट ऑपरेटर। अगेन बाद में भी आएगा ये ऑपरेटर, अभी याद रखना है 3 डॉट आर्क्स अगर लिखा तो अभी जावास्क्रिप्ट के इंजन को, जावास्क्रिप्ट इंजन को ये पता है कि ये आर्ग्यूमेंट के पहले 3 डॉट डाला है, मींस कॉल करते समय जितने भी आर्ग्यूमेंट हमने भेजे हैं वो सब पैक हो गए एक अरे में, और वो अरे इधर पास होगा। मींस देखो, अभी मैंने फू कॉल किया, आई हैव पास्ड 1 5 3। अगली बार फू कॉल किया, उस समय में भी मैंने 10 पास किया है, 100 पास किया है, 50 पास किया है, 2 पास किया, 9 पास किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड ऐसे नहीं है कि आप लोग सिर्फ नंबर से पास कर सकते हैं, एनी वैल्यूज यू कैन पास। कुछ इंटीजर, कुछ स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी देखो, जब फंक्शन डिफाइन किया है तो आर्ग्यूमेंट को 3 डॉट लिखा है, तो your JavaScript engine knows that at the time of call, as many values you have passed, it is supposed to first pack it into a array। इन सबको एक array में पैक करेगा और वो array यहाँ पास करेगा। एंड एज ये array है तो इसके अंदर के वैल्यूज हम एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं ना, फॉर लूप से। फॉर ऑफ ऐसे लिख सकता हूं, फॉर x ऑफ आर्क्स। गेटिंग? तो x में क्या आते रहेगा, एक एक वैल्यू आते रहेगी ना वो आर्क्स में से, ये 1, ये 5, ये 3 सब गए ना वो अरे में। तो x में पहली बार क्या आएगा, 1, फिर नेक्स्ट टाइम 5, नेक्स्ट टाइम 3, फॉर लूप खत्म। नेक्स्ट टाइम देखो मैंने 5 वैल्यूज भेजे, अगेन क्या होगा, ये सब वैल्यूज किस में पैक हो जाएंगे, एक अरे में, और वो अरे यहां पास होगा। Understanding? These all values are packed into an array and the array is passed here. And then when you are accessing it in a for loop, it will get 1 by 1 value. पहले 10 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 9 आएगा, for loop खत्म। I hope you got it। कैसे रूल है देखा, कितना मस्त कंसेप्ट बनाया है कि जस्ट 3 डॉट डालो। बट अगर यहाँ गलती से 3 डॉट लिखना भूल गए, देखो यहाँ फू में आपने सिर्फ आर्क्स लिखा और डॉट ही नहीं लिखा,
एंड कॉल करते समय मैंने बहुत सारे वैल्यूज भेजे, ठीक है। इट इज नॉट गोइंग टू पैक इट इनटू अरे एंड सेंड इट, क्योंकि इधर 3 डॉट नहीं, तो ये जस्ट एक 1 आर्ग्यूमेंट अज्यूम करता है पोजिशनल, तो जस्ट 10 ये आर्ग में जाएगा, ये बाकी 2 इग्नोर हो जाएंगे, ये एक्स्ट्राज हो गए, तो ये 10 सिर्फ ये आर्ग में आएगा एंड वो आर्ग यूज करो। पैक करके वो अरे नहीं भेजा है, ये पूरा पैक होकर वो अरे कब आएगा, व्हेन यू गिव 3 डॉट्स, करेक्ट। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट। सी the rest syntax ऐसे bracket dot 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 and the name of the parameter allows you to represent an indefinite number of arguments as an array। ये array के तौर पे ही होगा, कॉल करते समय जितने भी वैल्यूज आपने पास किए they all will get stored into a array and that array is passed here, and as it's a array, can we traverse it using a for loop? Yes, this is the preferred method in JavaScript. Modern JavaScript ये टेक्निक फॉलो करता है। ओके, एग्जाम्पल देखो कि हमने क्या किया, एक फंक्शन लिखा है small और उसका एक पैरामीटर है नंबर्स, बट उसके आगे 3 डॉट है। इससे प्रूव्ड है कि इसमें काफी वैल्यूज आने वाले एज अ अरे। देखो एट द टाइम ऑफ कॉल, नीचे कॉल किया है small 1 2, small 1 2 3 4, तो पहली बार ये पूरा 1 2 पैक होकर अरे में आएगा, नेक्स्ट टाइम ये चारों पैक होगा और अरे में आएगा, अंडरस्टैंडिंग। एंड एज इट्स अ अरे, कैन आई यूज अ फॉर लूप टू गेट 1 by 1 वैल्यू फ्रॉम द अरे। तो मैंने एक टोटल किया है, फिर एक एक वैल्यू निकाल रहा हूं और वो टोटल में ऐड कर रहा हूं। तो पहली बार टोटल 0 है एंड नम 1 है, तो 0 + 1 1, फिर 1 + 2 3, वो आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइम देखो 0 + 1 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, you get 10, understanding? So how the technique is, so fascinating things they have provided, isn't it? हर लैंग्वेज ऐसे अपने अपने यूनिक फीचर्स देते रहता है जिससे अपना काम आसान होता है, ठीक है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसी में वो वेरिएबल आर का अलग, ओके या लीव इट, विल क्रिएट अनदर स्क्रिप्ट। ठीक है, सी आई एम क्रिएटिंग वन फंक्शन कॉल्ड small एंड देखो डॉट 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 एनओएस लिख रहा हूँ। एनओएस मीन समझ में, इट्स अ पैरामीटर, बट डॉट 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 है मीन्स वो ऑटोमेटिक एक अरे है, ठीक है। लोकल वेरिएबल ले रहा हूं जिसमें मैं टोटल रख रहा हूं 0, फिर एक फॉर लूप लेने वाला, तो आई एम गोइंग टू यूज फॉर ऑफ। फॉर ऑफ क्यों, क्योंकि मुझे वैल्यूज चाहिए उसमें से, वो अरे में से वैल्यूज चाहिए, इंडेक्स चाहिए रहेगा तो इन यूज करो, ठीक है। तो ये फॉर लूप, फॉर कॉन्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट वी विल गिव अवर एनओएस। अब वो एक एक वैल्यू आ रहा है, ये एनओएस में से एक एक वैल्यू ये एलिमेंट में आ रहा है, और वो वैल्यू मैं टोटल में टोटल कर रहा हूं इक्वल टू एलिमेंट, लास्ट में मैं ये टोटल रिटर्न करूंगा। ओके, नाउ यू कैन कॉल एंड सी console.log, you're calling small, कभी मैं पास कर रहा हूं 10 20 30, तो कभी पास कर रहा हूं कुछ और वैल्यूज। देखो small, here I'm passing 5, then 2, then 8, then 7, then 1, then 6, जो भी है, ठीक है। पहली बार जब small कॉल किया हमने 3 वैल्यूज पास किए, ये ऑल 3 एक अरे में पैक होगा और वो अरे एनओएस में आएगा, getting? And now after this it will access 1 by 1 value। तो पहली बार 10, तो 0 + 10 10, फिर 10 + 20 30, 30 + 30 60, अंडरस्टैंडिंग। एंड सेकेंड केस में क्या होगा, अगेन ये पूरे 6 वैल्यूज पैक होकर ये अरे में जाएगा, इट विल पैक इट एंड पुट इट इनटू अरे, एंड फिर अरे में एक्सेस किया है, पहले 0 है तो 0 + 5, पहले 5 आएगा तो 0 + 5 5, 5 + 2 7,
7 plus 8, 15. 15 plus 7, 22. 1, 23. And 23 plus 6, 29. So accordingly you'll get answer. ठीक है? See. सेकेंड टाइम 29 आया, पहली बार 60 आया. ठीक है. अब इसमें सिर्फ एक कंडीशन है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये जो वेरिएबल लेंथ है इसके साथ एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट भी देना है, तो वो पहले ही देना पड़ेगा. मीन्स इनका कहना है कि ये जो वेरिएबल आर्ग है ना, रेस्ट ऑपरेटर, वो हमेशा लास्ट होना चाहिए. इसके बाद अगर कोई पैरामीटर है तो नहीं चलेगा. देखो अगर मैं एक n भेज रहा हूँ, डज इट गिव अ एरर? वो एरर ही है, सिंटैक्स एरर आता है. तो रेस्ट ऑपरेटर ये हमेशा लास्ट ही होना चाहिए. हाँ, बट दैट n यू कैन गिव फर्स्ट. ऐसे दिया n कॉमन, नो प्रॉब्लम. अभी इसमें क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू जो है ना ये 10, वो n में जाएगी, वो 10 जाएगा n में, एंड रिमेनिंग दो वैल्यूज अरे में आएंगे. तो आपको ये पहले सम में 10 कम दिखेगा और दूसरे सम में 5 कम दिखेगा, क्योंकि सेकेंड टाइम अभी क्या होगा, ये 5 जो है वो n में जाएगा एंड रिमेनिंग ऑल विल गो इनटू दैट अरे. गेटिंग? यू कैन चेक द डिफरेंस. कैन यू सी, पहले सम में 10 का कम है एंड दूसरे सम में 5 कम आ गया, क्योंकि 5 हैज गॉन इन n, in this case 10 has gone in n, and the remaining all are gone in this NOS. Okay, so that also you should remember properly. See here, the rest parameter must always be the last parameter in the definition. जब भी फंक्शन डिफाइन करोगे तो अगर उसमें रेस्ट पैरामीटर है तो वो रेस्ट हमेशा लास्ट ही होगा, फर्स्ट नहीं. मीनिंग फर्स्ट बोलने की जगह पे बीच में ही कहीं नहीं आ सकता. एक बार रेस्ट आया तो वो लास्ट ही है. जो एग्जांपल मैंने दिया था अभी यहां देखो, ये NOS के बाद अगर मैं कुछ पैरामीटर देने गया तो इट गिव्स एरर. चाहिए तो पहले लिख सकते हो. गेटिंग? जैसे इस एग्जांपल में देखो, फंक्शन प्रोसेस आइटम्स, जो पोजिशनल है वो फर्स्ट है, दैट इज एक्शन, एंड ऑल वेरिएबल लेंथ जो है वो बाद में लिखा है, डॉट 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 आइटम्स. तो अभी देखो जब मैंने ये कॉल किया तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना डिलीट, वो फिक्स एक्शन में आएगी. ये पहली वैल्यू बाय डिफॉल्ट फर्स्ट वैल्यू, वो पोजिशनल है, इसका पोजिशनल करस्पॉन्डेंस. एंड ये बाकी जितने भी है ये सब पैक होकर किस में आएंगे, आइटम्स में, बिकॉज वो रेस्ट ऑपरेटर है. तो ऑल द रिमेनिंग विल गेट पैक्ड इनटू अ अरे एंड दैट विल कम इन दिस आइटम्स, and the first one will strictly come in this action. Getting? and अंदर प्रिंट करने पर देखो, एक्शन प्रिंट किया तो डिलीट, एंड आइटम्स प्रिंट किया तो ये पूरा अरे प्रिंट हो रहा है ना. Getting? so that way. And then comes the second technique of variable length by using arguments object. ये arguments नाम का एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो इनबिल्ड ऑब्जेक्ट है, वो जावास्क्रिप्ट इंजन ने ऑलरेडी बना के रखा है, एंड डायरेक्टली वो किसी भी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो. इन एनी फंक्शन, इनसाइड दैट फंक्शन डेफिनेशन, इनसाइड दैट फंक्शन बॉडी, यू कैन यूज इट. इट लुक्स एज इफ इट्स अ अरे, बट एक्चुअली इट इज अ ऑब्जेक्ट. तो अंदर फंक्शन के अंदर हम ये यूज कर सकते हैं, मैंने कहा. तो इसको एक लेंथ प्रॉपर्टी होता है, आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ. ये लेंथ प्रॉपर्टी में क्या रहेगा, कितने आर्ग्यूमेंट्स आपने भेजे, एंड इसके अंदर के आर्ग्यूमेंट्स एक्सेस करने, तो एक्सेस इट एज इफ इट्स लाइक अ अरे. देखो, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स दे सकते हैं, 0 1 2. इट विल गिव यू द वैल्यूज. Getting? And when I call that function, you can pass any number of argument, like 1 भेजा है, 2 भेजा है, 5 भेजा है, तो 3 वैल्यूज है. तो ये तीनों वैल्यूज ये ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गए, आर्ग्यूमेंट्स. तो इसका लेंथ कितना आएगा, 3. एंड स्क्वायर में एक्सेस करने गए आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 0 1, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 1 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 5. Getting? So this way you can access them. So easy it is.
So before ES6, that is 2015 JavaScript, JavaScript functions, no arrow functions. एरो फंक्शन सेपरेट देखना है, इसको हम लोग लैम्बडा फंक्शंस भी कहते हैं या एनोनिमस फंक्शंस, तो इनको वो अवेलेबल नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट ये एरो फंक्शन के अंदर नहीं एक्सेसिबल है, ठीक है। तो इधर लिखा है एक्सेप्ट एरो फंक्शन। तो बिफोर ES6 how we were able to access that variable number of argument? Through this argument object had a built-in object called argument available inside the function body, and function body में वो access हो सकता है, ठीक है। It looks like an array but it is not a true array, it is a object. ओके देखो, जैसे फंक्शन डिफाइन किया, कुछ भी पास नहीं करना है, 0 आर्ग लिखना है, फंक्शन शो आर्ग राउंड ब्रैकेट, बट फिर भी कॉल करते समय आप वैल्यूज भेज सकते हो। देखो, शो आर्ग्स एंड देन आई एम राइटिंग एप्पल, बनाना, चेरी, ये सारे वैल्यू ये आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गए गाइस, और ये आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट ये फंक्शन बॉडी के अंदर यूज करने के लिए अलाउड है। इधर लिखा है देखो, आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल इनसाइड द फंक्शन बॉडी, फंक्शन बॉडी में वो एक्सेसिबल है। तो देखो, आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ का, तो इट विल गिव यू हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स पास, लाइक 3। फिर मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 0, तो हु इज दैट 0? एप्पल। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 2, हु इज दैट 2? चेरी, बिकॉज 1 प्लेस पे बनाना है। ऐसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आई विल शो यू एन एग्जांपल आल्सो फॉर दिस। ये वेरिएबल लेंथ में ही ले लेते हैं। सपोज आई एम राइटिंग फंक्शन and I'm giving names list, that's all, ठीक है। and what I'll do is I'll write a standard counter for loop, okay। एक counter for loop लिखता हूं, for I equal to 0, I less than, and यहां मैं यूज करूंगा arguments dot length। वो arguments नाम का ऑब्जेक्ट जो है वो फंक्शन बॉडी में अवेलेबल है यूज करने के लिए, ठीक है। I प्लस प्लस, एंड मैं कैलकुलेशन वगैरह नहीं करने वाला हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट दोज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। बाय कंसोल डॉट लॉग एंड आई राइट आर्ग्यूमेंट्स ऑफ आई, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ आई। तो नाउ सपोज आई एम कॉलिंग दिस function names list, I'm passing some names, like I'm passing Ram, I'm passing Sita, I'm passing Lakshman, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब कॉल किया 3 वैल्यूज, ये तीनों वैल्यूज ये अरे में स्टोर हो गए, अरे बोलने की जगह पे ये ऑब्जेक्ट में, तो तीनों वैल्यूज इसमें है। तो कितने वैल्यूज गए उसमें? 3, तो लेंथ 3 है, तो फॉर लूप 3 टाइम्स चलेगा। आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 0 पे राम है, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 1 पे सीता है, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 2 पे लक्ष्मण है, वो प्रिंट होगा। सेम अगर आप कॉल करता है विद डिफरेंट वैल्यूज, गेटिंग? तो इफ यू आर कॉलिंग आनंद भेजा है, निशान भेजा है, ठीक है, गर्व भेज रहा हूं, शामिली भेज रहा हूं, ठीक है, डजंट मैटर। ये सारे वैल्यूज एक आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गए एंड वो एक्सेस कर सकते हो। कैन यू एक्सेस इट इन द फॉर लूप? यस, ठीक है। सी, देखो, पहली बार राम, सीता, लक्ष्मण, दूसरी बार आनंद, जिसैन, देन गर्व, शामिली, सब प्रिंट हो, ओके। तो इस तरह से दोनों वेज से आप वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भेज सकते हैं, ठीक है गाइज। तो फॉर टुडे यही हमें पॉज लेना है। नेक्स्ट सेशन विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट।